Hello, so very good morning to all of you. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Okay, so we'll be starting with the today's session. Okay, so before we start, we'll do just a small recap, like what we have done so far. Okay, so in the previous sessions, we have seen is about this operation on continuous time signal. Yes or no? Okay. Now just let me show a very simple, interesting story. I mean, a very simple example. Just take it for the sake of simplicity. Like I have a continuous time signal. I hope the screen is visible. Audio is perfectly fine. Camera is working good. Kindly give the feedback. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि क्या होने वाला है आज के सेशन में। आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मजा आने वाला है आपको। ये मैंने यहाँ पे चीज बना दिया स्केलेटन, इसको मैं कहता हूँ टाइम t, okay, and this is any arbitrary random signal x of t. And now on this signal, if I show, it is starting from -4 and going to end at +2. Okay, fine. इसी को random signal हमने बना दिया है. And if you ask me, sir, what is the height of this? So I say that this is like a height is coming out to be a 6. Okay. So now if I ask you what is the starting point, you'll say the starting point is what, sir? -4. Kindly keep your microphones on. What is ending point, sir? What is ending point? 2. स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो होता है जहां पे सिग्नल का जन्म होने वाला है। 2 वो होता है जहां पे सिग्नल की मृत्यु, सिग्नल खत्म होने वाला है। एंड विड्थ इज ऑब्वियसली end point minus starting point comes out to be as 2 minus -4, which we got as 2 minus -4, and that is equal to 6. And if I talk about the height of the signal, so over here height I have taken it as, for example, यहाँ पे height को मैं ले लेता हूँ आपकी simplicity के लिए as height as 9 for in this case, and I say height is 9. So yes, these all are Indians, x-axis parameters. These all are Pakistanis, y-axis parameters. And now if I ask you, sir, this is my signal y of t. What is y of t? Signal after operation, signal after surgery, y of t equal to 3 times. क्या बोला मैंने? 3 times x of 5t minus 6 plus 8. इज इट क्लियर टू यू सर? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? क्लियर हो गया सर क्या लिखा गया यहाँ पे? तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 times x 5t minus 6 plus 8. Now my dear friends, what you are supposed to do, you are supposed to identify the type of operations involved and name the function, and also tell me the effect of the operations independently. What will happen, sir, because of 3? Can you tell me, sir? What is 3 is happening here? Multiplication factor. Multiplying by constant. Exactly, बेटा, ये perfectly told बेटा, it is multiplication by constant k. तो ये काम करने वाला है आपका 3. तो ये 3 जो है वो ये 3 multiplication by constant k. Okay, okay, fine. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूं, ये पे माइनस लगा देता, माइनस. चलो बोलिए सर, अभी क्या होने वाला है? नेक्स्ट व्हाट यू हैव, नेक्स्ट व्हाट डू यू सी? फास्ट फास्ट फास्ट, वो तो एक्सो सिग्नल है सर. व्हाट इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट स्टार्टिंग विद? The time reversal. वेरी गुड, टाइम रिवर्सल. तो भाई -1 जो है वो ये है टाइम रिवर्सल. तो पहले 3 दिखा, फिर -1 दिखा, बाद में क्या दिख रहा है भाई? इट्स व्हाट यू हैव. फास्ट फास्ट फास्ट. Sir, scaling. Time scaling. स्केलिंग. तो स्केलिंग किधर है? स्केलिंग अल्फा टी. तो कौन सा है वो? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस? yes guys, interactive. First case. Why? Because in this case alpha is greater than 1, it is time compression. तो आप बोला सर देखो ये है आपका 5, तो 5 इधर आ गया.
ठीक है, समझ रहे हैं सर क्या चल रहा है? ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव, नेक्स्ट व्हाट यू हैव, Shifting. सर शिफ्टिंग डिले होगा. नेक्स्ट व्हाट यू हैव, शिफ्टिंग. ओके फाइन. So next what you have is shifting. Wait, just a minute. चलो अभी फीडबैक मिलता रहेगा मुझे सेल फोन के थ्रू. फाइन. सो -6. ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव इज -6. तो आपने कहा भाई देखिए -6 मतलब ये वाला केस हो रहा है और यहाँ पे वो 6 है. ओके, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में आई नीड टू गो ओवर. हाँ बोलिए सर, अभी क्या हो रहा है? क्लैंपिंग. सर क्लैंपिंग. क्लैंपिंग. तो ये 8 वाला काम. हाँ 8 ये काम होने वाला है, 8 वाला. ठीक है, तो समझ रहे हैं आपको यहाँ पे सर? देखिए 3 है, ये है, पर ये मान फिर मैंने आप लिखा है 8. अब सर मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है. हाउ शुड आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन? ये सी में ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, बता देता हूं. क्वेश्चन एग्जाम में आएगा प्लॉट बोलकर. हाउ विल यू परफॉर्म बेटा? पहले क्या करोगे? मतलब मैं आप डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. बोलिए ना भैया, इतना का सोच रहे हो? तनिक तनिक बताइए जी, कैसे करोगे? पहले क्या करने का? ये है ब्रैकेट के अंदर जो भी मस्ती, जो भी ग्रैंड मस्ती ब्रैकेट के अंदर होती है वो कहा जाता है एक्स एक्सिस ऑपरेशन. कौन सा एक्सिस ऑपरेशन? मतलब अपना टेबल का लेफ्ट कॉलम. जो भी मस्ती ब्रैकेट के बाहर होती है, मतलब 3 है 8 है, ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस ऑपरेशन. तो पहले एक्स करूं कि पहले वाई करूं? बताइए सर, प्लीज बी फास्टर गाइस, वी डोंट हैव टाइम. पहले y नहीं 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 मल्टीप्लाई हो. नहीं, पहले x. सबसे पहले किया जाएगा x, सबसे पहले किया जाएगा x एक्सिस ऑपरेशन. क्या x के अंदर लिखा हुआ? आप बोलोगे सर x में लिखा गया है -5t -6. सबसे पहले किया जाएगा x एक्सिस ऑपरेशन. क्यों? बिकॉज वो लेफ्ट में लिखा गया है. सर कुछ भी राइट में लिखते, अगर ये राइट में लिखते तो फिर बोलते कि अभी वाई करना है. नहीं, आई विल गिव द लॉजिकल आंसर टू दिस, डोंट वरी. लेकिन फिलहाल मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूं कि मैंने पहले आपको एक्स एक्सिस पढ़ाया, तो आपको पहले करना है एक्स एक्सिस, बाद में हम करेंगे वाई एक्सिस. तो अभी एक्स एक्सिस में कैसे करोगे आप? फास्ट बोलिए सर. पहले टाइम रिवर्स. नहीं बेटा, नहीं 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 शिफ्टिंग. नहीं नहीं Two methods. इंग्लिश. वेरी गुड. कौन बोला रे 2 मेथड्स? कौन बोला रे बेटा? Sir. कृषि. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. पहला इंग्लिश, फिर उर्दू. उर्दू मेथड. इंग्लिश जब बोलता है पड़ोस का बच्चा आके, आप पड़ोस का बच्चा जब कभी भी आपके घर में आता है तो आप उसको क्वेश्चन पूछते हो, यार क्या कर रहा है? उसी स्कूल में. मैं मराठी मीडियम में. ठीक है. कौन सी स्कूल में जाता है? सर उर्दू में. अच्छा ठीक. कौन सी स्कूल में जाता है? सर इंग्लिश में. इंग्लिश में जाता तो काउंटर क्वेश्चन पूछता कि नहीं पूछता? हम हड़बड़ा जाते. द मोमेंट यू दैट पर्सन से कि मैं इंग्लिश में जाता, हाँ इंग्लिश में जाता. साला कल का बच्चा, शर्मा जी का बच्चा इंग्लिश में जाता है. यार क्या बात है, कौन सी स्कूल में जाता है इंग्लिश में? द मोमेंट यू डू दिस हड़बड़ाने वाला स्टाइल, इंग्लिश में ईगो आना मांगता है सर. यू हैव टू डू दैट स्टेप कॉल्ड एज भयानक वाला स्टेप. x ऑफ -5 बाहर, अंदर जाएगा t प्लस 6/5. करेक्ट है सर? ये स्टेप होना मांगता है, चाहिए स्टेप, इंपॉर्टेंट है. नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे यार. कहीं कहीं ईगो आपको हेल्प करता है, कहीं कहीं आपको ईगो हेल्प करेगा. चलो भाई, तो भाई पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू मेथड. फास्ट, क्विक 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 स्टार्ट. पहले क्या करोगे? Shifting. शिफ्टिंग. वेरी गुड सर. शिफ्टिंग किससे?
6 से 6. डिले के एडवांस फिर डिले. Delay. क्या नेगेटिव बच्चा है यार, 25 तारीख को देने का था, आराम से आता है 28 तारीख को, सर असाइनमेंट, बीमार था मैं. क्या बीमार रहता है तू, गंदा बच्चा है. डिले. वेरी गुड. उसके बाद में क्या दिखा? Scaling by 5. क्या बात है यार मैडम, बहुत होशियार हो. स्केलिंग, कंप्रेशन, कंप्रेशन. ओके. उसके बाद में रिवर्सल, Reversal. बिकॉज ऑफ माइनस. अभी इधर आइए सर, भयानक स्टेप. काउंटर क्वेश्चन पूछा ना, इंग्लिश में जाता तू, हाँ, यू हैव टू परफॉर्म दैट स्टेप. अब बोलो सर, अब क्या करूं मैं? सबसे पहले क्या दिखा? Reversal. रिवर्सल सर रिवर्सल. उसके बाद में Scaling. स्केलिंग. वेरी गुड सर. कॉम्प्रेशन लिखने का यहाँ पे. ओके. उसके बाद में शिफ्टिंग शिफ्टिंग. उसके बाद में लिखा शिफ्टिंग. शिफ्टिंग में क्या सर? Advance. एडवांस पॉजिटिव है. क्या पॉजिटिव बच्चा है यार, कितनी पॉजिटिव लड़की है नमिता. 25 तारीख को देने का था, 20 तारीख को आ गए, सर मेरा टाइटल अप्रूव करवा दो ना प्लीज. भाई 25 को देने, नहीं नहीं सर मुझे जल्दी काम करने अच्छा लगता है. क्या पॉजिटिव लड़की है यार. वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टूडेंट, एडवांस. समझा आपको क्या बोला मैंने? ओके सर, ये वही स्टेप है, जानबूझ के रेड में लिखा, ये आपको फर्क करके दिखाने वाला है. शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल. रिवर्सल, स्केलिंग, शिफ्टिंग सेम ही है. लेकिन अगर आप ये स्टेप परफॉर्म नहीं करते हो, आपने इसको ऐसे लिखा होता, बोला सर देखो इंग्लिश मेथड बन गया मेरा. लेकिन ये स्टेप होने के वजह से ये यहाँ पे चेंज करके दिखाता है. यहाँ पे बोला डिले बाय 6, यहाँ पे बोला एडवांस बाय 6/5. फर्क समझा भाई? भयानक वाला स्टेप करने का. काउंटर क्वेश्चन पूछता है ना, याद रखने का. द मोमेंट यू हियर इंग्लिश यू हैव टू आस्क अ काउंटर क्वेश्चन. इंग्लिश में जाता, तू किधर जाता रे? शर्मा जी का बच्चा इंग्लिश में जाता है. सेकंड भाई, सेकंड. अब क्या करना है सर? वाई एक्सिस. एक काम करते हैं ना सर, क्यों नीचे नीचे चले जाना शुरू कर रहे हो? कितना नीचे गिरोगे? इधर आ जाइएगा, यहां लिखिए मेरे साथ में सेकंड वाला. अब क्या करना है सर? वाई एक्सिस ऑपरेशन. पहले किसको करूं भाई? पहले 3 वाला करूं कि पहले 8 वाला करूं? 3 बोले तो मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, 8 बोले तो 8 बोले तो क्लैंपिंग. ओके, किसको करूं सर पहले? मैं मल्टीप्लिकेशन करूं कि क्लैंपिंग करूं? बोलिए ना भैया जी, सन्नाटा क्यों हो जाता है? डर लगता है का पहले हमसे? मल्टीप्लिकेशन फिर क्लैंपिंग. काय को ऐसा उल्टा किया तो नहीं चलेगा का? अगर उल्टा किया तो फिर वो पूरे को मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब जो +8 है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. यस बेटा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला. पहले मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, बाद में क्लैंपिंग. बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर उल्टा किया तो, मैं क्या बोला मालूम उसको? पहले क्या सिखाया? मल्टीप्लिकेशन सिखाया. बाद में क्या सिखाया? क्लैंपिंग सिखाया. बच्चा बोला कुछ भी सर, पहले क्लैंपिंग सिखाता तो फिर ऐसा बोलता क्लैंपिंग सिखाया पहले. रुकना बेटा, काय को ये मेरे तेरे को इलॉजिकल तेरे को आंसर दिया मैंने. लॉजिकल आंसर दू? हाँ दो ना सर. तेरे को बॉड मास मालूम है क्या? बचपन में सिखाया था बॉड मास. डू यू रिमेंबर दिस बॉड मास? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉड मास? Subtract operation, multiplication, addition, subtraction. ऐसा नहीं बोलने का, अरे प्यार से बोलने का, स्टाइल में बोलने का. सर BO मतलब ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन. पहले ब्रैकेट ओपन मतलब ये करने का. व्हाट इज दिस? एक्स एक्सिस. क्या समझाया है बाप? बाद में क्या है सर? डिवीजन. ये डिवीजन यहाँ पे नहीं है ना डिवीजन? अरे 3 कैन बी रिटन एज 1/1/3. हो गया डिवीजन. अरे सर कुछ भी सर. अच्छा ठीक है, चल टेंशन मत ले रहे. मल्टीप्लिकेशन तो हाँ सर है ना, मल्टीप्लिकेशन 3 है ना यहाँ पे 3. पहले मल्टीप्लिकेशन करने का, बाद में क्या करने का? एडिशन है ना यहाँ पे, एडिशन. सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन है, माइनस ऑफ माइनस सब्ट्रैक्शन. समझा आपको सर? लॉजिकल आंसर दिया हाँ मैंने. सर. अभी लॉजिकल आंसर दिया. पहले आपको मैंने इलॉजिकल बोला, बट एनीवेज क्योंकि हमने वो फ्लो में पढ़ा है तो शुड रिमेंबर कि फर्स्ट यू टू परफॉर्म एक्स एक्सिस. X axis means you need to follow English and Urdu method, and for Y axis you have studied first with this, second with this.
अगर आपको याद नहीं रहता बोलते क्या है ये वाइवा में नहीं बोलने का, वाइवा में कोई पीपल विल लाफ एट यू। वाइवा में क्या बोलोगे आप, आई एम फॉलोइंग द रूल ऑफ बॉडमास। पहले ब्रैकेट को ओपन किया, पहले ये किया, बाद में फिर मल्टीप्लीकेशन किया, बाद में एडिशन किया। ओके समझा? चलो भी फटाफट बोलने का सर, वक्त की शॉर्टेज है हमारे पास में। माइनस ऑफ 5t प्लस 8 माइनस ऑफ 6, माइनस ऑफ 6। फास्ट कौन बोलता है भाई, कौन बोलता है? पहले क्या पहले क्या पहले क्या, जल्दी जल्दी बोलने का टाइम नहीं है भाई, वक्त भागे जा रहा है। यस 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 यस, एनीबडी कैन आस्क, एनीबडी कैन से। चलो भाई तनिष्क जी बताइए आप। सर पहले एक्स एक्सिस का ऑपरेशन करेंगे, -5 को कॉमन ले लेंगे और t - 8/5 करेंगे। क्यों तो क्यों क्यों क्यों? जब आप इंग्लिश मेथड करेंगे। एग्जैक्टली ये मेरे को उर्दू करने का है, तब क्या करूं? तभी पहले स्टेप करना है। नहीं सर, तब पहले शिफ्टिंग करेंगे सर। यस सिंपल सर, आप वो मोमेंट को याद रखिए। आप जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। आपके घर में शर्मा जी का लड़का आया है, शर्मा जी के बेटे को आपने पूछा कौन सी स्कूल में जाते हो, बोलते हो उर्दू में जाता हूँ, मराठी में जाता हूँ, हिंदी में जाता हूँ। ठीक है जा जा जा, हम लोग गेम खेलने में बिजी है, जा आ भी जाए। जब वो बोलता है इंग्लिश में जाता हूँ, इंग्लिश में जाता है, का कौन से इंग्लिश में जाता है रे तू? जो हड़बड़ाना वाला स्टेप, मतलब आपको डेफिनेटली आपके माइंड में घंटी बजाए कि भाई मुझे भयानक वाला स्टेप करना है। समझा सर? कभी कभी एक्टिंग करने का, फाइन ओके फाइन, चलो हो गया। बाद में क्या करूं सर? अभी श्रुति रमन जी बताइए मुझे आप, अब क्या करूं मैं? सर एक्स वो होने के बाद जो -8/5 रहेगा उससे वो वो हो शिफ्ट। गया ना, वो स्टोरी हाँ, खत्म हो गया सर। एक्स एक्सिस, अभी वाई एक्सिस पे आ रहे हैं हम लोग, अभी वाई को हाईलाइट करेंगे। वाई एक्सिस में हम पहले वो 3 से, -6 हाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देन -6 से हम ऐसा नीचे क्यों क्लास। ऐसा? अगर पहले -6 किया तो नहीं चलेगा? नहीं सर, बॉडमास रूल। क्या बात है, चलो फैंटास्टिक, मजा आ गया यार टैलेंटेड बच्चे मेरे। काश थोड़ा मैं भी टैलेंटेड होता आपकी तरह। मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती मेरे को, बोले कैसा बुद्धू लड़का पैदा किया है मैंने, कुछ नहीं आता है इसको। बहुत बुरा लगता है मेरे को, रोज रोता है मैं। चलो भाई लेट्स स्टार्ट सर। सो दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज एलिमेंट्री सिग्नल। क्यों करने वाले हैं भाई एलिमेंट्री सिग्नल? लास्ट टाइम वीडियो दिखाया था इफ यू रिमेंबर। बोलिए सर, व्हाट इज एलिमेंट्री सिग्नल्स? एलिमेंट्री सिग्नल क्या होता है भैया, बता दीजिए मुझे आप। लास्ट टाइम वीडियो बताया था। सर जिस सिग्नल से बाकी के सिग्नल हम डिराइव कर सकते हैं। क्या बात है बेटा, फैंटास्टिक। ऐसा आंसर बोलोगे ना सर, खुश हो जाएगी पब्लिक कि सर एलिमेंट्री सिग्नल जो होता है वो बेसिक सिग्नल होता है, और वो सिग्नल को यूज करके आप बड़े बड़े सिग्नल डिराइव कर सकते हो। वेरी गुड सर। आपका मोटिवेशन देख के मुझे एक शेर याद आ गया, सुना सकता हूं क्या शेर? एक शायद कोई सुनना नहीं चाहता है मेरे शेर शायरी को। यस सर, सुना। आप कांच हूं, सुनिए ना इरशाद। आज कांच हूं इसलिए पैर में चुभ रहा हूं, आज कांच हूं इसलिए पैर में चुभ रहा हूं, कल आईना बनूंगा तो सारी दुनिया देखेगी। वाह वाह सर, वाह सर, वाह। इसलिए कहता हूं भाई वाह, मेहनत वाह, करिए, मेहनत करिए। कल आईना बनना है आपको, तो लोगों को दिखाइए कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या हो। आज लोगों को खटकता होगा कितना कोर करता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, पढ़ता नहीं है, ढब्बू है। कोई बात नहीं है सर, आज कांच हो इसलिए लोगों के पैर में चुभ रहे हो आप, कल आईना बन जाओगे, दुनिया देखेगी आपको। चलो भाई लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन सर। हम स्टार्ट करने वाले अभी एलिमेंट्री सिग्नल के ऊपर। एलिमेंट्री सिग्नल में सबसे पहले आने वाला है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है भाई?
सर ये तो बाइक का नाम है, इम्पल्स. व्हाट इज इम्पल्स सिग्नल? डू यू नो व्हाट इज इम्पल्स? 11th फिजिक्स 1 चैप्टर 4 फोर्स पढ़ा था वहां पे, इम्पल्स. सिंगल इंस्टेंट का मोमेंटम चेंज होता है. फोर्स, ये चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने? 11th फिजिक्स 1 चैप्टर 4 फोर्स, इम्पल्स. यस. क्या होता है इम्पल्स? फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम. हाँ फिर से बोल, बहुत अच्छा स्टेटमेंट यूज किया बेटा तूने. फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल. फोर्स एक्टिंग, दुर्वेश क्या बात है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी विद यू. फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम. फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स बनती है ना, वहां पे है कि असलम करके, पता है आपको? कैरम मास्टर. डू यू नो दैट कैरम मास्टर असलम? नो सर. ओके फाइन, कोई बात नहीं. ये जब हम कभी भी कैरम खेलते हैं, ये स्ट्राइकर होता है, जिसको आप स्ट्राइक करते हो, तो वो स्ट्राइकर को आपको टिचकी मारना है. वो स्ट्राइकर को आपको टिचकी मारना है. क्या करते हो वहां पे आप? वो एक छोटू सा इंस्टेंट होता है और वो इंस्टेंट पे आप टिचकी मारते हो और फिर आप अपने हाथ बांध कर देखने लगते हो कि अभी क्या होता है, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अगर आप वो असलम अगारिया, उसका आई थिंक सरनेम, उसका आई डोंट नो सरनेम, वो असलम का अगर आप देखते हो, कैरम मास्टर का वीडियो अगर आप देखते हो, वही करता है. वो स्ट्राइकर को स्ट्राइक करके देखता है, देखो सर अभी क्या होने वाला है, और फिर कुछ देर के बाद फिर वो इशारा करता है कि देख अभी ना वो पॉकेट में गोटी जाने वाला है करके. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस वीडियो ऑन रील्स और नॉट. इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स पे हमेशा वीडियो चलते रहता है असलम वाला, कैरम मास्टर. ओके, इफ पॉसिबल चलो ढूंढ लेते भाई असलम को. ये देखो आ गए. अगर कितना रियल है फेक को पता नहीं, कि लोगों का बोलना है कि नहीं वो एड़ा बनाता है करके. ये देखो, ये है भाई वो असलम अगारिया, कैरम मास्टर. आई डोंट नो वेदर यू सीन दिस वीडियो और नॉट. किसने वीडियो ने देखा है? नो वन हैज सीन दिस वीडियो. ये देखिए तुम, ये अभी बराबर ये स्ट्राइक करेगा. अब बोलेगा देखो गोटी वहां जाएगी करके. ये वीडियोस हमेशा इसके ऊपर आते हैं. यू कैन जस्ट चेक आउट दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू शोकेस इट टू यू. फाइन. किसी ने नहीं देखा वीडियो? ये असलम अगारिया वाला है, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पे. चलो फाइन, ठीक है, नो वरीज नो वरीज. सो क्या करना है यहाँ पे? ये स्ट्राइकर जो है, स्ट्राइकर को आपको स्ट्राइक करना है. एंड व्हेन यू स्ट्राइक दिस स्ट्राइकर at that moment of time, this striker will start playing, and because of that poke that you provided. ये पहला केस एग्जांपल दिखाया आपको. सेकंड केस क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए. ये तो सबको पता है भाई, ये अपने विराट कोहली साहब खड़े यहाँ पे, जिन्होंने अभी हाल ही में कैप्टनशिप छोड़ दिया है. ठीक है, ये बैटिंग करने के लिए खड़े यहाँ पे, और ये भाई ने यहाँ पे बॉलिंग कर दिया. ये बॉल यहाँ इनकी तरफ बढ़ रहा है और इन्होंने वो टाइम इंस्टेंट पे फोर्स लगाया, बैट से बॉल को मारा, और फिर उन्होंने बैट को देख रहे कि अभी क्या होता है, लेट्स सी. अब ये बैट जो है वो चौका जाने वाला है, बॉल जो चौका मारने वाला है कि छक्का मारेगा यहाँ पे, या कोई जो फील्डर जो खड़ा है वो फील्डर जो है वो उसको बॉल को पकड़ेगा. तो ही इज नाउ गोइंग टू ऑब्जर्व नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सेम थिंग इम्पल्स का है. इम्पल्स क्या बोलता है कि नाउ इन केस ऑफ इम्पल्स इट इज ओनली अवेलेबल एट t equal to 0. It is only available at t equal to 0. मैं यहाँ पे बोलता था वैल्यू इज 1. ओके, एंड वी से दिस इज डेल्टा सिग्नल. डेल्टा, इसको डेल्टा लिखा जाता है, डेल्टा टी बोलकर. डेल्टा इज द नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन. डेल्टा, डेल्टा लाइक जैसे हम लिखते हैं ना एक्स ऑफ टी. व्हाट इज एक्स? रैंडम सिग्नल. बट इम्पल्स के लिए स्पेशल नोटेशन है डेल्टा करके, डेल्टा टी, तो डेल्टा ऑफ टी. समझा आपको?
इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 1 ओनली एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, दैट इज व्हाट टी इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज। फिर टी कुछ भी वैल्यू होने दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी 0, हर जगह पे 0 0 होगा, बस खाली यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी। समझा सर आपको क्या बोला मैंने? Have you understood what is the meaning of delta? Impulse, टिचकी मारना है आपको, वो इंस्टेंट पे आपको स्ट्राइकर को स्ट्राइक करना है, वो इंस्टेंट पे विराट कोहली जो है वो बॉल को शूट करेगा, बॉल को बैट से इसको पुश करेगा एंड देन इज गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग टू हैपन। समझा सर? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? एनी क्वेश्चन? बोलिए ना भाई। नो सर। सर क्वेश्चन तो है लेकिन आपके माइंड में आ नहीं रहा है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं मेरे बच्चों को, इफ यू आस्क मी क्वेश्चन आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम, इफ यू डोंट आस्क मी क्वेश्चन आई विल अज्यूम यू नो इट एंड आई विल नॉट टच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सवाल ये है क्यों पढ़ाया इंपल्स? इंपल्स पढ़ाया क्यों जाता है? क्यों पढ़ाया गया इंपल्स? एग्जाम्पल दिखाता ना भाई आपको मैं। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, नाम अलग अलग लूंगा मैं बिकॉज मुझे किसी को यहां पे फोकस नहीं करना है। ये टॉम है, इसका नाम हैरी है, इसका नाम डिक है, टॉम डिक हैरी, 3 दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स आपस में, ठीक है। आप चाहे तो अपने लिए आप किसी का नाम समझ सकते हो, लेकिन मैं एज अ फैकल्टी मैं टॉम डिक हैरी लेने वाला हूं। क्या करने का? कॉलेज शुरू हो गया ऑफलाइन मोड में, बेंच है, 3 बच्चे बैठने वाले, टॉम बैठेगा, डिक बैठेगा, हैरी बैठेगा, और पीछे मैं बैठा मस्ती वाला लड़का, बड़ा शरारती लड़का, बेहद ही बदतमीज बेगैरत, ठीक है। अब ये लड़का क्या करने वाला यहाँ पे जो बैठा है, ये पीछे से टॉम को पोक करेगा। आपने क्या बचपन में कभी किसी को पोक किया है? यस और नो? यस। वेरी गुड। श्रुति नमन ने पोक किया, बस कल श्रुति ने किया। राहुल तुमने पोक नहीं किया? राहुल, दुर्वेश, श्रेयस? यस सर। नो सर। फिर वो जाके टीचर को बोलने का, टीचर टीचर श्रुति इज पोकिंग मी, ठीक है। तो वही होने वाला है यहाँ पे, मैं टॉम को जाके पोक करने वाला हूँ। टॉम मस्त पढ़ाई कर रहा है, तीनों पढ़ाकू बच्चे हैं, फाइन, और टॉम को जाके पीछे से मैंने ऐसा पोक किया। क्या करेगा टॉम? ए धक्का मत मारना। क्या बोला टॉम ने? ए धक्का मत मारना। याद रखिए सर टॉम का रिएक्शन क्या था, समझा आपको? कम टू हैरी, सेम चीज हैरी के साथ में करना है। हैरी को चुपके से जाके पीछे से टपली मारना है, पीछे को खाली टिचकी मारना है, टपली मारो, टिचकी मारो, वॉट एवर इट इज, ओके चलो फाइन। मुझे आज भी याद है जब कोई बाल काट के आता था हमारे स्कूल में, उसको जाकर पीछे से उसको टमाट मारने के, ताजी गली बोलने के उसको। आप लोगों ने किया कभी ताजी गली? यस सर। ओके, तो ये सेम चीज यहाँ पे करने वाले, जाके मैं हैरी को पीछे से टपली मारने वालों ये ताजी गली, फाइन ओके। अब मैं जाके मैंने हैरी को किया, हैरी ने क्या बोला मालूम? एमसीबीसी बोला मेरे को डायरेक्ट। फर्क समझ रहे सर आपको? फाइन। अभी जाके मैं डिक के साथ में करने वाला, डिक को जाकर मैंने चमाट मारा जाके। डिक ने क्या किया? डिक उठा, डिक ने मेरे को पंच मारा उठ के, बोले साला, बोले मेरे को मारता है कल का बच्चा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री? इसने क्या बोला? ए मत मारना, काय को मारता है। इसने गाली दिया, एमसीबीसी बोला इसने मेरे को, और इसने पंच मार दिया। क्यों सर? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई डू यू फील सो? क्या बोलोगे इसके ऊपर भी आप? टॉलरेंस। टॉलरेंस, ओके। एनीबडी कैन फास्ट फास्ट भाई, सबने किया ऐसा, ताजी कली, सबने टपली मारा है, किसी ने पिक किया है, किसी ने पोक किया है, और मार भी खाया हम लोगों ने टीचर के थ्रू। डोंट डिस्टर्ब, कॉल योर पेरेंट्स, यू आर वेरी नोटोरियस स्टूडेंट। Impulse for the third one is the highest. ओके फाइन, सुनिए सर ध्यान से। अभी ये बताता है आपको सिस्टम का खुद का रिस्पॉन्स। इसने क्या दिया? गाली दिया। हम क्या बोलते? कैसे घर वाले इसके, तमीज नहीं क्या, कैसी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इसने पंच मारा, ये दारा सिंह का लड़का है क्या? पंच क्या मारता है यार, ठीक है ना, क्या मस्ती तो किया है ना। कितना शरीफ लड़का है, क्या कितने प्यार से बोला मत करना भाई, क्यों परेशान कर रहा है। क्या बोलते इसका हम लोग? फितरत।
अपनी लैंग्वेज में, है ना, हम ये बोलते हैं फितरत, उसके घर की कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम चीज यहाँ पे होने वाला है सर, मैं कहता हूं सिस्टम का रिस्पॉन्स। ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है। कौन सा रिस्पॉन्स है सर? ये सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये सिस्टम का फोर्स फ्री रिस्पॉन्स है। फोर्स फ्री क्यों बोला? आप थोड़ी ना उसको बारह मारे हो, ताजिकली ताजिकली ताजिकली, एक ही बार मार के आप देख रहे हो क्या करता है भी। फोर्स फ्री रिस्पॉन्स, ये वर्ड को ध्यान रखिए सर, आगे चल के कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे आप। व्हाट इज सीएस सर? काउंटर स्ट्राइक, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में आप ये पढ़ोगे चीजों के बारे में कि सिस्टम रिस्पॉन्स क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, फोर्स फ्री रिस्पॉन्स क्या होता है। सर एग्जांपल दूं? यस देता हूं बेटा। आपको ट्यूबलाइट पता है? सलमान खान की मूवी की बात नहीं कर रहा हूं सर, ट्यूबलाइट की बात कर रहा हूं मैं। डू यू नो ट्यूबलाइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I want everyone to see the action on the camera. What I'm going to do? ये ट्यूबलाइट है, ठीक है? आपने ट्यूब को ऑन किया, ट्यूब नंबर 1, सेकेंड ट्यूब चालू किया, दिख रहा है आपको? थर्ड ट्यूब, बंद कर यार, क्या है बे? क्या बोलोगे सर इसको आप? फर्स्ट वाले का इंस्टेंट रिएक्शन। एग्जैक्टली सेम थिंग। इसको मैं कहता हूं सिस्टम का रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, फोर्स फ्री रिस्पॉन्स। अभी तो एलईडी वाला ट्यूबलाइट आ गया है, रेक्टेंगल वाला, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बटन चालू फट से चालू हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द ओल्ड वाला ट्यूबलाइट्स, वो चोक स्टार्टर वाला केस की बात कर रहा हूं मैं। समझा इम्पल्स का रोल क्यों? इम्पल्स क्या करता है? इम्पल्स आपको बताता है कि सिस्टम कैसा बिहेव करने वाला है। ओके सर, समझ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स। ओके, अभी मैं आपको और एक चीज पूछता हूं भैया, बताइए सर क्या पूछने वाले? सर आपने डेल्टा टी देखा? अरे सर क्या है, अब भी तो पढ़ा है आपने, अब भी पढ़ा है 2 मिनट पहला। डेल्टा टी बोले तो ये 0 पे 1। Sir, can you help me out with delta of t minus 1, delta of t minus 2, delta of t minus 3, and so on? What will it look like, sir? What will it look like? कैसे दिखेगा सर ये भैया बताइए? How will it look like? Sudden spikes at 0, 1, 2, 3 and so on. क्या बोल रहा है भाई? डेल्टा टी इधर है, डेल्टा टी माइनस 1 इधर है, टी माइनस 2 उधर है, तो डेल्टा टी माइनस 1 विल गिव यू 1 ओनली एट 1, बस। हाँ मतलब वैसा करेक्ट है ना? आराम से सर। टी माइनस 2 कहां देगा आपको? 2 पे देने वाला है। अभी आपको मैं पूछता हूं सर, कैन यू हेल्प मी आउट फॉर डेल्टा ऑफ टी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन? किधर आएगा? -1, -2, -3। क्या बात है यार, कितना टैलेंटेड बच्चा है रे तुम लोग। क्या कॉम्प्लेन खा के पैदा हुआ था क्या तुम लोग? साला मेरे को इतना दिमाग क्यों नहीं है यार। सॉरी +2, हाँ बेटा +2। ओके, आप बोलो सर -1 पे ये आ जाएगा, -2 पे ये आ जाएगा, सही है सर? करेक्ट है? ओके, अभी मैं आपको बोलता हूं, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड दिस विथ द अदर पार्ट एज वेल। व्हाट विल बी द आंसर? की होगा भैया बता दीजिएगा। प्लस डॉट 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 विल कंटिन्यू एंड सेम डॉट डॉट विल कंटिन्यू ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल। चलो बोलिए भैया। All the spikes will be there on the same graph. अभी देखना क्या होने वाला है। मैजिक होगा, मैजिक होगा, मैजिक होगा, मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा? मैजिक होगा ना, ये होगा 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, कंटिन्यूएशन, -1 पे 1, -2 पे 1, -3 पे 1 एंड सो ऑन। 1 2 3 0, -1 -2 -3।
You have drawn a train of impulses. You have drawn a train of impulses. मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा. समेशन क्यों लिखा मैंने? समेशन, अरे प्लस किया ना भाई, इसलिए समेशन लिखा. डेल्टा लिखना पड़ेगा. क्यों डेल्टा लिखा मैंने? सर डेल्टा फंक्शन का नाम है, डेल्टा. ओके. टी क्यों लिखा? अरे सर टी है ना यहाँ पे, लिखो टाइम, इट इज द टाइम. ओके. टी माइनस के, के रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. समझा मैंने सर क्या लिखा है मैंने? सर नहीं समझ रहा है. अज्यूम k इक्वल टू 0, डेल्टा टी, ये देखिए डेल्टा टी. अज्यूम k इक्वल टू 2, t माइनस 2, k इज 2, t माइनस 2. ए देखो भाई t माइनस 2. अज्यूम k इक्वल टू माइनस 3, माइनस 1, चलो माइनस 1 लेते हैं हम लोग. k इक्वल टू माइनस 1, t माइनस माइनस 1, t प्लस 1, ये देखिए सर. और ये सब सिग्नल को आपको प्लस 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 करते जाना है, रेंजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटिव टिल प्लस इंफिनिटिव. समझ गया सर क्या बनाया मैंने? हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्रेशन? व्हाट एक्सप्रेशन आई एम ट्राइंग टू डिनोट ओवर हियर? यस सर. ओके. अगर डायरेक्ट लिखता समेशन डेल्टा तो बोले सर क्या लिख रहे हो यार, ये आप भी शुरू हो गए बाकी लोगों की तरह. तो समझना जरूरी कि भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है. Okay. Don't you think it is a train of impulses? ट्रेन, ट्रेन है ना, 12 डब्बे की ट्रेन, 15 डब्बे की ट्रेन. तो ट्रेन कंडीशन होगा 10 टिक 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 स्पाइक्स यू आर गेटिंग. आल्सो अ ट्रेन ऑफ इंपल्सेस. वेरी गुड. एक जन ने कितना मस्त आइडिया था, बोला देखो ना सर ये ऐसा दिखता है मेरे को रियल लाइफ में. बोला हाँ तो कहना क्या चाहता है? बोले सर अभी सुनो क्या करने का, ये अभी लेने का इसको, और इसको ना रोटेट करने का. देखा कैसे रोटेट किया मैंने? अंडरस्टैंडिंग हाउ डू आई रोटेटेड दिस? एंड सर डोंट यू थिंक इट लुक्स लाइक समथिंग व्हिच आई ऑलरेडी हैव, वी एवरीवन हैव एट आवर होम. इट लुक्स लाइक अ comb. सजना है मुझे सजना के. डोंट यू थिंक इट लुक लाइक अ comb? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Hence, this function is also known as a comb function. क्या दिमाग लगा है, देखिए ना सर, इमेजिनेशन देखिए सर. बोला गया इसको कोम फंक्शन. क्या बोला इसको? कोम फंक्शन. सर ये कोम फंक्शन किसने डिराइव किया? कौन था ये? सर नजीब सर. अरे नहीं रे, नजीब सर तो क्या फालतू आदमी, कुछ नहीं आता है उसको. कौन डिराइव किया मालूम है? वो आदमी का नाम था डिरैक. How many of you heard the word Dirac for the first time? तो है यहाँ पे. इसके पहले कभी सुना आपने डिरैक के बारे में? नहीं सर. अरे क्या बात करता है तुम, डिरैक सुना है तुम लोगों ने? सर फर्मी डिरैक कुछ क्या बात है यार, तबीयत खुश कर दिया तूने मेरी. यस बेटा, वो है वो डिरैक. ये वो आदमी है जिसने कोम फंक्शन को इन्वेंट किया, फर्मी डिरैक वाला. ये आपने पढ़ा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, करेक्ट और नॉट? राठौड़ सर ने पढ़ाया रहेगा आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में. आपने पढ़ा होगा फर्मी डिरैक, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल. फिर आप बोलते हो कि यस 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 फिजिक्स में था सर. ओके, फिजिक्स में पढ़ा था. Semiconductor. यस यस, चैप्टर 19 ऑफ फिजिक्स. चैप्टर 19 ऑफ फिजिक्स. यस बेटा, वो उधर भी था वो, और ये आपने एई में भी पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमेस्टर 3 में. ओके फाइन, चलो. तो ये है वो डिरैक. सर अभी भी डाउट है. क्या डाउट है सर? यूज काय को किया वो बोलो ना, कुछ भी पढ़ा तो यार. ये ठीक है, कंगे बना दिया थोड़ी ना लेके घूमना है, मेकअप बॉक्स थोड़ी ना है. लड़कियों के पास बहुत मेकअप होता है. मेरी आधी सैलरी मेरी वाइफ ही ले जाती है. बोलती लिपस्टिक मंगाना है नायका का, लैक्मे का. बोले क्या यार, कितना लिपस्टिक चाहिए तेरे को? ठीक है चलो. अलग अलग कंगी उसके पास में, छोटा बड़ा पतला. ये क्या बनाया सर मैंने? टाइम एक्सेस. दिस इज एक्स ऑफ टी सर, एंड दिस इज एनी आर्बिट्री सिग्नल एक्स ऑफ टी. अरे गाना सुना था ना हम लोगों ने, जुगनू वाला, चमको जैसे तेरे प्यार में जुगनू टी 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 टी. तो ये जुगनू का जो गाना था ना, वो गाना मैंने यहाँ पे मैंने बना दिया है.
ओके, तो तो अभी ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इसको आप पास करिए इसके साथ में समेशन डेल्टा टी माइनस के, वेर के रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव. And now, my dear friend, you tell me, if I do this x of t multiplied by summation delta t minus k equal to minus infinity plus infinity, what will be the answer? We'll get the value of x of t only at integer values. क्या बात है यार, श्रुति रमन, you're such a talented यार. Guys, I want everyone to clap for Shruti Raman. It's such a talented CR you have opted for. Hats off to you, बेटा. क्या होगा सर यहाँ पे क्या होगा? This is 1, this is 2, this is 3, this is -1, this is -2 and so on, this is 0. तो क्या होने वाला है? सुनिए ना भैया, अब मजा आने वाला है. किसकी शुरुआत होगी? देखिए अभी आप क्या दिखाने वाला आपको मैं. अभी आपको दिखाने वाला हूं मैं कमाल वाली चीज, जिसको सुन के आप मेरे साथ में जुगनू का स्टेप करने वाले हो. चमको जैसे प्यार में जुगनू. ओके, 1. ये भी 1 है ना? अरे क्या बना दिया यार, जुगनू के प्यार में भी कुछ भी कर देता हूँ. 1 1 1 1 1 1. कैसे 1 1 1? अरे डेल्टा फंक्शन है सर वो तो, डायरेक्ट फंक्शन, कोम फंक्शन. ठीक है, अभी चमको जैसे प्यार में जुगनू 2 1 3, ये अभी हो गया 2 हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर सर? आई एम ट्राइंग टू शो किसी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, फिर तुम अचानक बढ़ गया, फिर कम हो गया. ठीक है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 2 2, 1 into 1 1, 4 in 1 into 3 3. समझ रहे सर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? 1 into 2, 1 into 3. So now what will I get, sir? I will get such kind of signal. कुछ ऐसा सिग्नल बनेगा. 1 3 1 4 3.5 0.5. सर क्या बन गया ये? This is what kind of signal, sir? This is what kind of signal? Discrete. यार, this is a discrete signal. This is a continuous signal. ये continuous signal है, ये discrete signal है. एक मिनट भैया, continuous signal ये वाला है अपना. This is continuous signal. This is discrete signal. कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो मुझे बोलेगा कोम फंक्शन क्या करता है यहाँ पे? सिर्फ कोम फंक्शन यहाँ पे सैम्पलिंग का काम करता है, सैम्पलर का काम करता है. समझा के नहीं समझा भैया? समझा सर. सर आपने बोला था आप हमको रियल टाइम एग्जांपल देंगे. दूंगा ना रियल टाइम एग्जांपल, काय को टेंशन लेता, अपने पास में सब मिलेगा भाई. सब ऑफर जारी है, दिवाली ऑफर भी है, होली ऑफर भी, सब ऑफर है. आपको देखना है देख लीजिए सर. आपको गाना सुनना है ना, गाना सुनते हो ना, तो वो टाइम पे एडवांस्ड में आने का और फिर यहाँ पे देखने का. एक चीज दिखा देता हूँ. माइक्रोफोन में गया डिफॉल्ट फॉर्मेट. Sir, are you able to read what is written over there? $16 bits, 44 100 hertz. Sir, you are mute. सर आप म्यूट पे हो. Sir, you are on mute.
हाँ, नाउ इट इज ऑडिबल सर. यस Yes. सर. ओके Yes, sir. ओके, वो एक्चुअली आई वेंट टू दैट डेल वाला ऑडियो ना, तो माइक्रोफोन का इशू हो गया वहां पे. ओके, बिकॉज आई वाज चेंजिंग कंटिन्यूअसली दैट फॉर्मेट. फाइन. तो सर आपने क्या देखा वहां पे? कैन यू हेल्प मी आउट, बिकॉज आप मुझे और डिस्टर्ब नहीं करना है चीजों को. क्या देखा सर वहां पे आपने? सीडी क्वालिटी कितना था? 44100. यस सर. Yes, sir. व्हाट इज डीवीडी क्वालिटी? सर उसका याद नहीं सर. 48000. इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट. आप भी चेक कर सकते हैं आपके लैपटॉप में जाके. सीडी कितना था? 44100 एंड डीवीडी वाज 48000. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वहां पे एंड में लिखा हुआ था हर्ट्ज, यहाँ पे भी एंड में लिखा हुआ था हर्ट्ज. इसका अगर मैं कहता हूँ इसको लिखा जाएगा 44.1 किलो हर्ट्ज, इसको लिखा जाएगा 48 किलो हर्ट्ज. इसे क्या समझता है? इसे ये समझता है हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड. डू यू एग्री टू दिस? हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड. Yes. एक सेकंड में सीडी वाला क्या करता है मालूम है? वो जो गाना था ना, तेरे चमकू जैसे प्यार में जुगनू, तो वो जो गाना जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल है सर. ये सर, यस और नो? व्हाई कंटिन्यूस? बिकॉज दैट इज बीइंग संग बाय बादशाह, और बादशाह जब वो गाना गाता है वो रियल टाइम में गाना गाता है. ऑल रियल टाइम सिग्नल्स, ऑल प्रैक्टिकल सिग्नल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन नेचर. माइंड में बैठा देने का. हर सिग्नल कंटिन्यूस है सर. मैं आपसे बात कर रहा हूं वो भी कंटिन्यूस सिग्नल है. क्या मेरा कंप्यूटर कंटिन्यूस सिग्नल को स्टोर कर पाएगा? नहीं सर. व्हाई? सर मतलब उसको हर एक पॉइंट पे अलग अलग ऑडियो व्हाई रिकॉर्ड. व्हाई डिजिटल डिवाइस है. नो. व्हाई? लिसन सर, लिसन. सुनिए भैया, प्रॉब्लम ये है अपना कंप्यूटर में लोचा है. क्या लोचा है? क्या है सर? ये 232 GB टोटल साइज 341 GB, टोटल साइज 15 GB. इसमें SSD डाला हुआ है 2.5 GB 250 GB का. इसमें हार्ड डिस्क डाले 1 TB का. मतलब 1.25 TB डेटा, 1.5 TB is the only space available in this laptop. यस सर. आप बोलते हो बादशाह का गाना सेव करो. अरे बादशाह ने जो गाना गाया वो कंटिन्यूस में गाना गाया. 0.000000001 पर भी कुछ ना कुछ वहां पे नोड अवेलेबल होगा. 0.000000001 के ऊपर भी कुछ ना कुछ वहां पे नोड अवेलेबल होगा. अरे इतना सारा स्टोर करते बैठूंगा ना तो जो मेरा 1.25 TB का हार्ड डिस्क है वो भी मेरे सामने बोलेगा भाई आई एम फुल, आई एम रेड कलर नाउ, काइंडली गिव द न्यू हार्ड डिस्क टू मी. सही या गलत? डू यू अग्री टू दिस और नॉट स्टेटमेंट? Yes. करेक्ट है ना सर? बिकॉज एनालॉग सिग्नल जो वो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा. जैसे एग्जांपल आपको मैंने दिया कि भाई सलमान ने पूछा, साकिब ने पूछा सलमान को, आई होप यू नो द स्टोरी. सलमान इज द क्लीनर, साकिब इज माय यंगर ब्रदर. साकिब ने पूछा सलमान को कि भाई नजीब सर कहाँ पे थे 7:30 को? 7:30 को दादर में थे. 7:40 को बांद्रा में थे. 7:35 को कहाँ पर थे? 7:35 का डेटा मुझे नहीं मालूम है, मैंने नहीं पूछा कॉल करके. क्या आदमी है तू यार, कैसा काम करता है, तुझे पता होना चाहिए 7:35 को कहाँ पे था वो. ठीक है बोले कल से मैं डेटा लूंगा मैं. अच्छा कहाँ था 7:30 को? दादर. 7:35 को कहाँ पे था? 7:35 को माहिम में था. डेटा लिया था उसने, फोन किया 7:35 को, भाई किधर है तुम? बोले आप साकिब भाई परेशान करते. फिर ठीक है, क्या बोला मैंने सर? 7:30 को दादर बोला, 7:35 को माहिम बोला. स्टोरी सुनिए सर, मजा आने वाला है. 7:40 को बोला बांद्रा में था. साकिब दूसरे दिन उठा, पूछा सलमान को 7:30 इधर. ओके 7:32 किधर था? बोला भाई ये तो मेरे को नहीं मालूम. क्या करना पड़ेगा सर अभी? सलमान को क्या करना पड़ेगा? फास्ट.
बोलिए सर। पता करना पड़ेगा। Yes भरना पड़ेगा. Yes, any other person can little bit louder? Not able to hear you properly. अज्यूम करना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में कहीं होगा. मतलब हर पॉइंट पे कॉल करना पड़ेगा। अभी वो पहले 10 मिनट से कॉल कर रहा था, 10 मिनट का इंटरवल रखा था उसे, यहाँ कॉल किया, यहाँ कॉल किया, यहाँ कॉल किया, फिर वो 5-5 मिनट से कॉल करना शुरू करेगा कि 735 का डेटा भी मांगा जाता है, 5 मिनट का डेटा मांगा जा रहा है, अभी 2 मिनट, हर 2-2 मिनट से कॉल किया जाएगा। फिर बोलेगा नहीं अभी 1 मिनट का डेटा भी चाहिए, हर 1 मिनट से कॉल होगा, हर आधे मिनट से कॉल होगा। तो कैन यू थिंक कि कितना नोटबुक बनाना पड़ेगा कि 7:35 पर 35 मिली सेकंड पर 32 मिली सेकंड पे वो आदमी यहां था, पूरा नोटबुक भर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते, वी गो फॉर सैम्पलिंग। ठीक है, 7:30 का डेटा लिया, 7:32 का डेटा लिया, 7:34 का डेटा लिया, सर दोनों के बीच में किधर होगा, ये दोनों में? तो वो बोलेगा सर दोनों के बीच में शायद से माहिम में होगा, या हो सकता है कि दादर में टीसी ने पकड़ा होगा टिकटलेस ट्रैवलिंग करके बोलकर, हो सकता है कि शायद से दादर में एक्सीडेंट हुआ हो सकता है कि दादर में ट्रेन डीरेल हुआ हो सकता है कि दादर माहिम के बीच में जो खाड़ी आती है उसमें ट्रेन चली गई हो, मुझे कुछ नहीं पता है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कॉल इट एज जीरो। Zero is always a best estimation. Zero is always an interpolation and interjection in between. Okay? ये पहला चीज हमने देखा। सेकंड चीज, यहां पे आपको मैंने बताया CD क्वालिटी और DVD क्वालिटी। CD क्वालिटी 1 सेकेंड में 44.1 किलो मतलब कितना 44,100 सैंपल्स 1 सेकेंड में लेके रखता है CD क्वालिटी, और बोलता है कि अभी आप गाना प्ले करो। तो व्हाट वी हियर इन डिजिटल इज नथिंग बट द सैंपल। समझा बेटा आपको? अगर मैं डीवीडी की बात करता हूं तो डीवीडी जो है वो इतना सारा सैंपल लेके रखता है, 48,000 सैंपल डीवीडी लेके रखता है, और वो गाना आप सुनते हो। समझा बेटा आपको? व्हाट साउंड दैट यू आर हियरिंग राइट नाउ ऑफ माय ऑडियो वॉइस इज नथिंग बट डिजिटल। आप जो सुन रहे हो ना बेटा वो डिस्क्रीट सुन रहे हो आप। What you are hearing is discrete, it is not continuous. When your mummy or your daddy, your brother is saying something to you, you are hearing continuous signal, sir. आपकी मम्मी ने बोला बेटा यहाँ पर आओ खाना खाना है, डैडी ने बोला बेटा वो इधर फोन दे दे मुझे, भाई ने बोला भाई चलो ना खेलने चलते। These all are continuous signal because these are real time signal. The sound that you're hearing via speaker, my audio signal, song that you're hearing is nothing but a discrete signal because वहां पे सैम्पलिंग रेट डिसाइड होता है। आप रियल टाइम में कोई अगर चीज देखते हो, यू आर वॉचिंग रियल टाइम कि हाँ अगर कार इज कमिंग, कार इज गोइंग, इट इज अ कंटिन्यूअस वीडियो सिग्नल दैट यू आर वॉचिंग सर। बट इफ यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन योर फोन और इन योर लैपटॉप, इट इज अ डिस्क्रीट बिकॉज वहां पर भी सैम्पलिंग रेट डिसाइड होता है। 60 फ्रेम पर सेकेंड, 120 frame per second, that decides the sampling rate, at what rate I have to take the sample. तो ये होता है वो सैम्पलर का काम सर। यहाँ पे आपने बोला 1 पर 4, 2 पे 3.5, ये 1-2 के बीच में कितना गैप रखना है, वो गैप डिसाइड करेगा आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं सर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एंड हाउ डू यू कन्वर्ट अ गिवन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल टू अ डिस्क्रीट सिग्नल? समझा कि नहीं समझा सर यहाँ पर? यस सर। यस सर। चलो सो मैं आपको दिखाता हूं अभी और एक चीज सर। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं 1,3,1,4,3.5, आपका स्क्रीन शेयर बंद है। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। जस्ट 2 minutes सर बेटा, देन विल स्टॉप, आई नो टाइम इज अप। ओके दिखा मैंने क्या लिखा यहाँ पर सर? मैंने 1,3,1,4,3.5, 0.5 कहां से आया सर? ये जो है लिखा है ना 1,3,4,1,4,3.5, 0.5 पूरा यहाँ पे मैंने एज इट इज मैंने लिखा। सर व्हाट इज देयर एट 0?
0 पे क्या है, 0 पे 1 है, तो वहां पे मैं बना देता हूँ ऐसा छोटा सा एरो. What does arrow indicate? This is the sample value 1, sample value 1 at instant n equal to 0. What is sample value at minus 1? 3, at 1, 4, and so on. This is the sequential representation of a discrete signal. This is a sequential representation of a discrete signal. 1, 3, 1, 4. ये आपने बनाया graphical representation and this is a sequential representation. समझा बेटा कैसा होगा sequential representation? Have you understood, sir? एक सेकंड का लिए देख लीजिए, then we will stop, sir. ये था यहाँ पे. These all are continuous signal, no doubt about it. And then we have started with the representation of the discrete time signal, how discrete time signal generated. वो एक बार आपको दिखा देता हूं मैं, so that you get to know. ये देखिए सर, डेल्टा डिराक फंक्शन, कोम फंक्शन, पेज नंबर 21 ऑफ द नोट्स. डेल्टा टी प्लस टी, डेल्टा टी माइनस टी, ये कोम फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गया. टी माइनस एन टी देखा हम लोगों ने, डिस्कस किया हम लोगों ने. एक्सप्रेशन फॉर डिराक फंक्शन, सैम्पलिंग प्रोसेस, consider a signal, multiply by delta t, you will get this. Fine. X of 0 is the weight signal at that instant, and into delta t will decide the position. And then फिर आप ऐसा करते हो, and then you get this. Fine. T is a sampling period. Fine. 1 upon t is what? Sampling frequency, and that is what? Fs. समझे sampling frequency क्या होता है? Understood, sir? Fine. See now this is that 1, 2, 3, 4. Sample value at x of 0. Arrow जहाँ पे arrow रहेगा वो होगा आपका x of 0. So this is the graphical representation and this is the sequential representation. And this is how a DT signal, discrete time signal, is represented by x of k dot delta of n minus k. This is the mathematical representation. This is the graphical representation and this is the sequential representation. समझा sir? Page number 21, 22, 23 of the notes, you may refer it to understand what is a sampling procedure and what is the meaning of a discrete time signal. DT signal detailing में हम पढ़ने वाले semester 5 में. The subject name is DSP. Okay, sir. Thank you very much. The video will be uploaded today itself. Sir, can you upload the previous ones as well? अब uploaded ना बेटा, time shifting वाला, time shifting, time scaling. 2 वीडियोस है पहले और चैनल. ओके मतलब आप फ्राइडे वाले की बात कर रहे हो?